الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہم نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جانی چاہیے، اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سیکھ رہے تھے، جن میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کیا غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح ہم نے کی، اور ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ سارے مسائل ہم نے سیکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ سب چیزیں ہم نے سمجھی، پڑھی، جانی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اب ہمیں ایک دوسری سورت پڑھنی ہے۔ اب وہ دوسری سورت کیسے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہے، اور دوسری سورت پڑھنے کی دلیل کیا ہے قرآن و حدیث سے، وہ ہم جانیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کی قرات یعنی دوسری سورت پڑھنا، اللہ اکبر کہا ہم نے، تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے دعا استفتاح پڑھی، جسے دعا ثنا بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک دوسری سورت کی تلاوت کرنی ہے، اس کے تعلق سے مسئلہ چل رہا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں قرآن کی کوئی اور سورت یا آیت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ عنہما عن ابیہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعات کی، غور سے سنیے گا، ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعات کی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار کچھ آیات ہمیں سنا بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کچھ آیتیں اللہ کے نبی سنا دیتے تھے۔ کہنے کا مطلب کہ اللہ کے نبی کبھی کبھار سری نمازوں میں بھی تھوڑا آواز اونچی کر لیتے تو صحابہ کو کچھ آیتیں سنائی دیتی تھیں۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سری نماز میں اگر امام قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے بیچ میں اگر ایک آدھ آیت زور سے پڑھ دے تو اس سے ظہر اور عصر کی نماز خراب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين بفاتحة الكتاب۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے، اور آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ظہر اور عصر میں، غور سے سنیں، ظہر اور عصر میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں
उस नमाज के अंदर इमाम के पीछे पहली दो रकात में, ठीक है, पहली दो रकात में सूरह फातिहा के साथ हमें कोई और सूरत पढ़नी है। सूरह फातिहा के साथ हमें कोई और सूरत पढ़नी है। कब पढ़नी है? पहली दो रकात में। और आखिरी की दो रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। ये कब की बात चल रही है? सिर्री नमाज की। ठीक है, नीचे फायदा पढ़ते हैं। सिर्री नमाजों में यानी जोहर व असर की पहली दो रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत पढ़ी जाएगी, जैसा कि मंदर जबाला अहादीस में बहसियत इमाम प्यारे रसूल का अमल इसका सबूत है। तो क्या मालूम चला? सिर्री नमाज में जोहर और असर की पहली दो रकात में हमें पढ़ना है। ठीक है। और जाबिर की रिवायत में तो इस बात की भी दलील मौजूद है कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला शख्स भी जोहर व असर की पहली दो रकात में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत बहैसियत मुक्तदी मिला सकता है। इमाम के पीछे, जैसे इमाम तो पढ़ेगा ही, ठीक है, इमाम को तो पढ़ना ही पढ़ना है सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत। लेकिन जो पीछे मुक्तदी है ना, जो पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं इमाम के साथ, वो भी पहली दो रकात में जोहर और असर की क्या करेंगे? इमाम के साथ, इमाम जो पढ़ रहा है पीछे जो है, हम भी कोई दूसरी सूरत पढ़ लेंगे, क्योंकि सिर्री नमाज है। और सिर्री नमाज के अंदर मामला यह रहता है कि आवाज नहीं आती इमाम की, ठीक है, तो हम भी कोई एक सूरत पढ़ लेंगे, जायज है, सहाबा पढ़ा करते थे। अलबत्ता इस बात का ख्याल रहे कि जहरी नमाजों में इमाम के पीछे मुक्तदी को सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। सिर्री नमाजों में तो हम पढ़ सकते हैं शुरू के दो रकात में इमाम के पीछे होते हुए भी सूरह फातिहा के साथ कोई सेकंड सूरा, लेकिन जहरी नमाजों में सिर्फ और सिर्फ हमें सूरह फातिहा पढ़ना है। पूरे के पूरे चार रकात में कोई दूसरी सूरत हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी सूरत मिलाने की इजाजत नहीं, बल्कि इमाम की क़िराअत को गौर से सुनने का हुक्म है। तो पता ये चला, दूसरे उसमें इमाम की क़िराअत हम गौर से सुनेंगे, बस यही काफी है। अब यहाँ पर उसके बाद का मसला है रुकू करना। रुकू कैसे करना है तो हम वो भी समझेंगे। नमाज में रुकू करना अरकाने सलात में से है। किस में से है? अरकाने सलात में से है। अल्लाह का फरमान है, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। नमाज कायम करो, जक़ात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो रुकू करना अरकाने सलात में से है। किसी का रुकू अगर नमाज में छूट जाए तो उसे नमाज, वो रिकात जिस रिकात में छूटा है वो रिकात उसको दोहरानी होगी। ठीक है, तो रुकू करना ये अरकाने सलात में से। रुकू की कैफियत, रुकू कैसे करेंगे? हालत रुकू में नमाजी को चाहिए अपने दोनों हाथों से घुटनों को मजबूती से पकड़ ले, दोनों हाथों को तान कर रखे और पहलू से दूर रखे। कैसे करना है? आपके जो दो हाथ है ना, उन दो हाथों को आप अपने जो घुटने हैं उसको मजबूती से पकड़ें। बाज लोग घुटनों से ऊपर पकड़ते हैं रुकू करते वक्त, ये सही नहीं है। घुटनों को पकड़ना है। और आपका ये जो पंजा है ना, दोनों हाथों के जो पंजे हैं, ये हाथ आपके खुले हुए रहेंगे। ऐसे नहीं कि पूरी उंगलियां आप सिकोड़ कर जो है रुकू करेंगे, नहीं।
पूरे के पूरे 5 की 5 उंगलियां दोनों हाथों की आप खुली रखें, और उसको जब आप रुकू करते वक्त अपने घुटनों को पकड़ेंगे तो अच्छी तरीके से पकड़ बनेगी। ठीक है, इस तरीके से रुकू करना है। हदीस पढ़ते हैं। قال अबू हुमैद रज़ी अल्लाहु अन्हु अना अअलमुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करा बअद हाज़ा قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. حدیث کیا ہے؟ ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ। रसूल ने जब रुकू किया तो अपने दोनों हाथों से घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया। क्या किया? दोनों हाथों से घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों हाथ सीधे तान कर रखे। जो हाथ है आपके वो हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ देखो फोटो में दिख रहा है आपको, जरा ऊपर कीजिए, फोटो दिखाइए। फोटो में दिख रहा है एक तो रुकू करते वक्त घुटनों पर हाथ है, और ये जो हाथ है बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हाथ सीधे होने चाहिए रुकू करते वक्त। ठीक है, कोहनियों को पहलू से दूर रखें। ये जो कोहनी है हाथों की, ये कोहनी को जो है आप, ये जो पीठ का हिस्सा होता है, देखिए पेट का और पीठ के बीच में का हिस्सा है, इसको नहीं लगाना। बाज लोग करते हैं इसे, कोहनी जो है अपने पेट को ले जाकर लगा देते हैं और उस पर टीका लेते हैं। ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है, इसको दूर रखना है। बुखारी की रिवायत में है जब आपने रुकू किया तो अपने हाथों से अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया। तो मालूम ये चला हाथों को घुटनों को हाथों से घुटनों को मजबूती से पकड़ना है, और जो हाथ है आपके स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, और हाथ की जो कोहनियां है वो आपके पेट के अंदर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दूर रहे वो। बाज लोग करते हैं वैसे, जो पेट में घुसा देते हैं अपने पूरे हाथ को रुकू करते वक्त और अपनी कोहनियों के ऊपर टेक लगाकर रुकू करते हैं। ये सही अमल दुरुस्त नहीं है, बल्कि सीधे होने चाहिए हाथ। हदीस अन वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रकअ फर्रज असाबिअहु। वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अपनी उंगलियों को खुला रखते थे। सूरह फातिहा और दूसरी सूरत की क़िराअत से फारिग होकर नमाजी को चाहिए अल्लाह अकबर कहे, रफुल यदैन करते हुए रुकू में जाए। ठीक है, रफुल यदैन करना है, मत भूलिए। अल्लाह अकबर कहकर जब हमने कोई दूसरी सूरत खत्म की, अल्लाह अकबर कहा, रफुल यदैन किया, अब रुकू में जाना है। रुकू में जाए जो कि अरकान नमाज में से एक अहम रुकन है। ठीक है, अरकान नमाज में से क्या है? एक अहम रुकन है, जिसकी रुकनियत पर किताब और सुन्नत इजमाए उम्मत के वाज़े और सरीह दलाइल मौजूद है। हालत रुकू में नमाजी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके दोनों हाथ घुटनों को मजबूती से इस तरह पकड़े हुए हों कि उंगलियां खुली रहें, बाजू पहलुओं से दूर हों और कोहनियां सीधी रहें। ठीक है, उंगलियां आपकी खुली रहें, बाजू जो है पहलुओं से दूर रहें। पहलू जो है ये सामने का हिस्सा रहता है, देखिए जहां पर हमारी कोहनी लगती है रुकू करते वक्त, उससे दूर रहे और कोहनियां हमारी सीधी रहें। यही तरीकेकार है रुकू का। हालत रुकू में पीठ और सर की कैफियत क्या होनी चाहिए? अभी आपको हाथ की कैफियत मालूम चल गई और उंगलियों की कैफियत मालूम चल गई। अब आपको मालूम करना है कि हमारी पीठ कैसी होनी चाहिए। तो हालत रुकू में नमाजी को अपना सर अपनी पीठ के बराबरी में रखना चाहिए। ठीक है, सर जो है पीठ के बराबरी में रखना चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत वकान इज़ा रकअ लम युशखिस रअसहु वलम युसव्विबहु वलाकिन बैन ज़ालिक। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में इस तरह है कि वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो सर ना ऊपर उठाते और ना नीचे झुकाते, बल्कि दोनों के दरमियान सीधा रखते। यहाँ देखिए ऊपर फोटो लगाइए, फोटो है, सर है, पीठ है, पीठ बिल्कुल स्ट्रेट। ये कब होगी? जब आपके हाथ सीधे होंगे।
और आप अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे, और ये जो सर है, सर भी पीठ के बराबर होनी चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, सर को ज्यादा ऊपर ना कर लें और पीठ इतनी ना झुका लें। बाज लोग करते हैं ना, झुका लेते हैं सीधा, जो है आधा, समझ लो आधा सजदा माना जाता है वो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें। ठीक है, आगे आ जाए। قال अबू हुमैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू हुमैद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, फी अस्हाबिही रकअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा हसरा ज़हरहु। अबू हुमैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, फिर अपनी पीठ पूरी तरह झुका दी। क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ को पूरी तरीके से झुका दिया। तो मालूम ये चला कि जब रुकू करेंगे तो आपकी पीठ झुक जानी चाहिए। तो पूरी तरह झुकने का क्या मतलब है? हालत रुकू में पीठ और सर को बराबर रखने के ताल्लुक से नमाजियों में अक्सर कोताही देखने में आती है। बाज लोग सर को बहुत ज्यादा झुकाए हुए होते हैं, सर जो हद से ज्यादा झुका कर रखते हैं, बल्कि घुटनों में दबाए नजर आते हैं, यानी उनके घुटनों तक सर पहुंच जाता है। और बाज पीठ को सीधा ना रखते हुए सर को भी बहुत उठाए हुए होते हैं, यानी पीठ भी सीधी नहीं है और सर भी जो है उठा हुआ रहता है। हालांकि ये दोनों तरीके दुरुस्त नहीं है। जैसे बाज लोग करते हैं ना सुस्ती में, ऐसे लगता है झुके हुए नहीं है, बस लाइट जबरदस्ती को कोई उनको जो है रुकू करने का हुक्म दिया है, बस ऐसे रुकू करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। मुंदर मंदरजा बाला अहादीस की रोशनी में रुकू की हालत में एक नमाजी को अपनी पीठ की तरह सर को भी ना ज्यादा झुकाना है और ना ज्यादा उठाना है, बल्कि सर को पीठ के बराबरी में रखना चाहिए। हमारे सर और हमारा पीठ बिल्कुल बराबर हो और स्ट्रेट हो, सीधा हो। ठीक है, यही सुन्नत रसूल है। रुकू की बाबत एक और अहम बात का जिक्र फायदे से खाली नहीं, कि रुकू करते हुए बहुत से नमाजी उजलत और जल्दबाजी से काम लेते हुए नजर आते हैं, जबकि रुकू में इत्मीनान व सुकून का पाया जाना फर्ज और रुकन है। इसमें भागम भाग वाली कैफियत जायज नहीं है, क्योंकि प्यारे नबी ने पूरे इत्मीनान से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से रुकू करते थे। आपने इसी का हुक्म नमाज में सही तरह से रुकू ना करने वाले अराबी देहाती को देते हुए कहा था, फिर तुम रुकू करो यहां तक कि तुम रुकू में खूब मुतमईन हो जाओ। तो बताइए चला कि जब हम रुकू करते हैं तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के शिकार हैं, ऐसे रुकू में गए कि नहीं सर उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब रुकू में जाएं तो बिल्कुल सुकून, इत्मीनान और वक़ार के साथ रुकू में जाएं और अच्छी तरीके से रुकू करें। जैसे रुकू करने का हुक्म दिया गया है वैसे रुकू करें। जब रुकू से अपना सर उठाएं, जब रुकू से उठें तब भी इत्मीनान से, क्योंकि एक देहाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में थे, एक देहाती को, आपने आराबी को देखा, वो नमाज पढ़ रहा था। तो वो नमाज पढ़ के नबी के पास आएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नबी को सलाम किया, तो अल्लाह के नबी ने कहा इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं अदा की। इस तरीके से अल्लाह के नबी बार 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 कहते रहे, आखिर में नबी ने उसको नमाज का तरीका बतलाया। तो नमाज आराम से पढ़ी जाती है, जल्दबाजी में नहीं। रुकू के रुकू की दुआएं, रुकू में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उसके ताल्लुक से जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहली दुआ, ये जो तीनों दुआएं आ रही हैं, ये तीनों दुआएं आपको हिफ्ज करनी है, याद करनी है। रुकू की अलग अलग दुआएं हैं, तो कोई भी एक दुआ इनमें से हम पढ़ सकते हैं। पहली, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मशहूर दुआ है, सब पढ़ते हैं। ठीक है, यही अक्सर सारे लोग पढ़ते हैं, मेरा रब अजीम हर ऐब से पाक है। दूसरी दुआ जो रुकू में हम पढ़ सकते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। याद कर लें दुआ, ये तीनों दुआएं याद करें। ठीक है, एक दुआ नहीं, तीनों दुआएं याद रहनी चाहिए। अय अल्लाह तू पाक है, हम तेरी तारीफ बयान करते हैं, अय अल्लाह मुझे बख्श दे। ठीक है, ये दो दुआएं हैं। तो या तो सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ लें, या तो फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये दुआ भी पढ़ सकते। या फिर तीसरी दुआ भी साबित है, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वरूह
فرشتوں اور روح، جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک ہے۔ روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ بھی دعا ثابت ہے۔ ان تینوں دعائیں میں سے آپ اپنی چوائس کے حساب سے کوئی بھی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رکوع میں نبی سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہے، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی رکوع میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا۔ جو دعائیں نیچے ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آپ پڑھ لیں کافی ہو جائے گی۔ یہ 3 دعائیں ہیں، کوئی بھی ایک پڑھے، ٹھیک ہے، آپشن، لیکن یاد آپ کو تینوں کرنی۔ یاد مثال کے طور پر آپ کو ایگزام میں آ جائے گا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ رکوع میں، سجدے میں، 2 سجدوں کے درمیان میں، تو آپ کو معلوم رہنی چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تسبیحات کی تعداد، جو یہ رکوع میں جا رہے ہیں ہم، تو رکوع میں کتنی مرتبہ دعا پڑھیں گے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار؟ تو رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور دعاؤں کا ایک مخصوص طاق یا جفت میں پڑھنا کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طاق عدد یعنی جسے کہتے ہیں کہ 1، 3، 5، 7، یہ کیا ہے؟ یہ طاق عدد ہے۔ غالباً اس کو آڈ نمبر کہتے ہیں، نہیں، آڈ نمبر انگلش میں۔ اور جفت وہی ہے 2، 4، 6، 8، ٹھیک ہے، یہ جفت کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں۔ تاہم پیارے نبی کا فرمان ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے، تو اس کی روشنی میں، یعنی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی روشنی میں تسبیحات کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ غور سے سنیے گا، 1 ٹائم پڑھنا کیا ہے؟ ان تسبیحات کو، تسبیحات مطلب جو رکوع میں ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں ان کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تاہم 3، 5 یا 7 وغیرہ طاق عدد میں پڑھنا افضل اور مستحب معلوم ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، اتنا پڑھنا کیا ہے؟ افضل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ ایک ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو طاق عدد میں اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو پسند آئے گا۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی مع تحفۃ الاحوذی میں تسبیحات کو کم از کم 3 کی تعداد میں پڑھنا اہل علم کا عمل قرار دیا۔ البتہ قیام اللیل اور دیگر نوافل پڑھتے ہوئے اگر لمبے رکوع و سجود کیے جائیں تو طاق عدد کی رعایت کے بجائے جو میسر آئے پڑھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر لمبے لمبے ہم رکوع کر رہے ہیں، جیسے ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے جتنی دیر چاہے ہم رکوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، چاہے تو ہم 5 منٹ تک رکوع کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اجازت ملی، ہم نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اب یہ طاق عدد والا آپ حساب نہ لگائیں کہ میں طاق عدد میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دعا اتنا پڑھیے۔ 10 بار پڑھیے، 12 بار پڑھیے، 13 بار پڑھیے، 14 بار پڑھیے، جتنی بار پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیے، اور آپ رکوع میں رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، اور قیام اللیل کی۔ فرض نمازوں میں اتنا لمبا رکوع نہیں کرتے۔ یہ رہا مسئلہ۔ اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہم آئندہ پیر کو پڑھیں گے، کیا رکوع پانے والے کو رکعت ملے گی یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نیکسٹ آنے والا جو منڈے ہے اس دن انشاءاللہ ہم اس کو مفصل طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سوالات جو ہے میں انشاءاللہ کل لے لوں گا، ٹھیک ہے۔